سید علی خامنائی موجودہ دور میں مسلم دنیا کے سب سے مشہور اور شاید سب سے پاورفل لیڈر، یہ ایران دیش کے سیکنڈ اور موجودہ سپریم لیڈر ہیں۔ ویسے تو آپ لوگ ان کے بارے میں خبروں کے ذریعے سے بہت کچھ جانتے اور سنتے ہی رہتے ہوں گے، مگر ان سے جڑی ہوئی کچھ بڑی ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والی چیزیں کہ جن پر ابھی تک آپ کی نظر نہیں گئی ہوگی، وہ دراصل ان کی فیملی کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی انٹرسٹنگ چیز تو یہی ہے کہ سید علی خامنائی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ جی ہاں، خود خامنائی فیملی مطلب کہ جس خاندان سے سید علی خامنائی بلونگ کرتے ہیں، اس کے دعوے کے مطابق اور ساتھ ہی ساتھ جو ایرانین گورنمنٹ کے آفیشیل ریکارڈز ہیں ان کے دعووں کے مطابق سید علی خامنائی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ونشج ہیں۔ 2020 میں لبنان کی المنار ٹی وی کی طرف سے براڈ کاسٹ کی گئی ایک ڈاکیومنٹری میں تو نمبر تک بتایا گیا تھا، مطلب یہ کہا گیا تھا کہ جو سید علی خامنائی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی 38ویں نسل سے ہیں۔ اب سید علی خامنائی نبی علیہ السلام کی نسل سے کیسے ہیں، ان کا اصلی شجرہ کیا ہے، اس پر تو بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ان کی فیملی سے جڑی ہوئی ذرا دوسری حیران کر دینے والی چیز دیکھیے۔ اسکرین پر نظر آنے والی یہ جو لیڈی ہیں، یہ دراصل سید علی خامنائی کی سگی بہن ہیں، مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سید علی خامنائی کی یہ سگی بہن آج ایران کے اندر ان کے سب سے بڑے مخالفوں میں گنی جاتی ہیں۔ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اور بار بار یہ سید علی خامنائی کی حکومت کو کرٹیسائز کرتی آئی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان سے زیادہ تو ان کے ہسبینڈ اس حکومت کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور آج جو ان دونوں کی بیٹی ہیں مطلب کہ سید علی خامنائی کی سگی بھانجی، ان کا رویہ بھی بالکل ایسا ہی نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر وقت وقت پر نہ صرف ایکشن لیا گیا ہے بلکہ ان کو جیل تک جانا پڑا ہے۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ تو چلیے ان سارے ہی معاملات پر تھوڑا گہرائی سے نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر ایرانین سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے شجرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے پہلے تو یہ بیسک چیز جان لینا ضروری ہے کہ آج کے دور میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جتنی بھی اولادیں پائی جاتی ہیں، ان کے جتنے بھی ونشج ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی صرف اور صرف ایک بیٹی سے ہیں، نہ کہ ان کے کسی بیٹے کے ذریعے سے ہیں۔ جی ہاں، نبی علیہ السلام کا پورا ونش، ان کا پورا شجرہ ان کی ایک مشہور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے چلتا ہے، اور انہی کی اولادوں کو ہی ایتہاسک طور پر سید کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی تھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح ہوا تھا مسلمانوں کے خلیفہ اور امام حضرت مولا علی شیر خدا سے۔ ان دونوں کی 5 اولادیں تھیں، جس میں سے 3 بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن، جبکہ 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ اب ان 5 میں سے بھی جو 2 سب سے اہم اولادیں تھیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہی حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کا شجرہ آگے چلتا ہے۔ مطلب دوسرے شبدوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ انہی دونوں سے چلتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ابھی تک اپنے آپ کو حضرت امام حسن کی نسل سے جوڑتے ہوئے آئے ہیں، ان کو حسنی سید کہا جاتا ہے، جبکہ جو لوگ اپنا شجرہ حضرت امام حسین سے جوڑتے ہیں تو ان کو حسینی سید کہا جاتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ان دونوں ہی اہم نواسوں کو شہید کیا گیا تھا، مطلب جو حضرت امام حسن تھے ان کو زہر دیا گیا تھا، اور جو حضرت امام حسین تھے ان کو ان کے لگ بھگ 72 ساتھیوں کے ساتھ کس طرح سے کربلا میں شہید کیا گیا تھا، وہ آپ لوگوں کو یہاں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ویسے تو حضرت امام حسن کی بے شمار اولادیں تھیں، جن کے ذریعے سے آگے چل کر ان کا یہ شجرہ، ان کی یہ لائن خوب پھلی پھولی، مگر آج پھر بھی ہم ان کو نہیں بلکہ صرف حضرت امام حسین کو ڈسکس کریں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی جو فیملی ہے، مطلب کہ خامنائی فیملی، وہ اپنی جو لائن ہے، جو اپنی نسل ہے، جو اپنا شجرہ ہے، وہ حضرت امام حسن نہیں بلکہ حضرت امام حسین سے جوڑتی ہے۔ آگے بڑھیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو کچھ بھی ہوا تھا، اس سے حضرت امام حسین کی صرف ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام تھا حضرت امام زین العابدین۔ باقی اولادوں کی طرح یہ بھی کربلا کے واقعے کے وقت وہاں پر موجود تو تھے، مگر بیمار ہونے کی وجہ سے حصہ نہیں لے سکے تھے، اور شاید یہ اتفاق اسی لیے تھا کیونکہ خدا کو پھر اس پوری نسل کو صرف اور صرف انہی کے ذریعے سے آگے بڑھانا تھا۔ اب اگر امام زین العابدین کی اولادوں پر نظر ڈالی جائے تو ان کے ایک بیٹے ہوا کرتے تھے زید الشہید، کے جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دور میں بنو امیہ کے ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی جرأت کی تھی۔
अब बनु उमैया के जो उस दौर में हद से ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे, उन्होंने इन लोगों के इस मूवमेंट को न सिर्फ कुचला बल्कि ज़ैद अश-शहीद को उनके साथियों समेत शहीद भी कर दिया। अब यहाँ पर एक और भी अहम चीज़ कि जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि आज के दौर में आप लोग यमन के इलाके में रहने वाले जिन ज़ैदी शिया लोगों के बारे में सुनते रहते हैं और ख़ास तौर से उनके उस ग्रुप हूती के बारे में सुनते रहते हैं, यमन के वो हूती लोग, वो ज़ैदी शिया लोग कहीं और से नहीं बल्कि यहीं से निकले हैं। जी हाँ, उस दौर में हुआ ये था कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात के बाद इमामत को लेकर इख्तिलाफ पैदा हुआ था। कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उनके बेटे ज़ैद अश-शहीद को अगला इमाम मान लिया था, उन्हीं लोगों को आगे चलकर ज़ैदी शिया कहा गया, जबकि ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक दूसरे बेटे मतलब कि मोहम्मद अल बाक़िर को अगला इमाम माना, और उन्हीं लोगों को आज के दौर में 12 शिया कहा जाता है। जी हाँ, 12 इमामों के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखने वाले वो ज़्यादातर शिया लोग कि जो ईरान, इराक, इंडिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में आज पाए जाते हैं। मगर जहाँ तक सवाल अब खामनाई फैमिली का है तो इन लोगों का शजरा इन तमाम से अलग हटकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो एक छोटे बेटे थे मतलब कि हुसैन अल असगर, उनसे चलता है। हुसैन अल असगर के बारे में ऐतिहासिक किताबों में लिखा गया है कि उनके लगभग 5 के करीब बेटे थे, मगर इन 5 में से भी वो खास बेटे कि जिनसे आज खामनाई फैमिली अपना शजरा जोड़ती है, उनका नाम हसन अल अफ्तास था। जहाँ तक सवाल इनके नाम में मौजूद इस वर्ड मतलब कि अफ्तास का है, तो हुआ ये था कि जब बनु अब्बास ने बनु उमैया की सल्तनत को ख़त्म किया था तो ये मिडिल ईस्ट के इस इलाके को छोड़कर उंदलुस मतलब कि उस इलाके में जाकर आबाद हो गए थे कि जहाँ पर आज स्पेन मौजूद है। ये लंबे वक्त तक उस इलाके में कायम अफ्तासी डायनेस्टी में रहे, जिसकी वजह से सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि उस दौर में इस इलाके में रहने वाले तमाम सैयदों को ही इस जगह के नाम की वजह से अफ्तासी सैयद कहा जाने लगा। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ वक्त के बाद फिर वो लम्हा भी आ गया था कि जब स्पेन के इलाके से भी मुसलमानों की हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो जब यहाँ से मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई और यहाँ के मुसलमानों और यहूदियों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाने लगा या उनको बाहर निकलने पर मजबूर किया जाने लगा, तो उस दौर के जो उस्मानी सुल्तान थे उन्होंने स्पेन के मुसलमानों और यहूदियों को पनाह देनी शुरू की। और उस दौर में उस्मानी सल्तनत में पनाह लेने वाले स्पेन के बेशुमार मुस्लिम खानदानों में से एक खानदान दरअसल हसन अल अफ्तास का खानदान भी था, जो पहले तो उस्मानियों के इलाके नजफ में आकर आबाद हुए और बाद में फिर पड़ोसी में मौजूद जो एक दूसरी शिया सल्तनत थी मतलब कि सफवी सल्तनत, उसके एक इलाके में जाकर आबाद हुए कि जिसको खामना कहा जाता था, और उसी इलाके की निस्बत से ही फिर इस खानदान के लोगों को खामनाई कहा जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और ये वक्त फिर सदियों में बदल जाता है और फिर हम देखते हैं कि इसी नस्ल में जन्म होता है एक इंसान का कि जिनको सैयद हुसैन के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल सैयद अली खामनाई के सगे दादा थे। इनके दादा ने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी असरदार और ताकतवर हुक्मरान मतलब कि सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर देखा। इन्होंने अपनी तालीम के लिए भी सल्तनत उस्मानिया के इलाके नजफ में एक लंबा वक्त गुजारा और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी फिर एक आलिम के तौर पर उस इलाके में लंबे वक्त तक रहते रहे। वहीं पर ही इनके एक बेटे सैयद जवाद का भी जन्म हुआ था, जो दरअसल सैयद अली खामनाई के फादर थे। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के वालिद भी बिल्कुल उनके दादा की तरह ही एक आलिम थे और साथ ही साथ एक मस्जिद के इमाम हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मशहद शहर में ही गुजारा और फिर आखिर में उनको यहीं पर दफन भी किया गया। साथियों, सैयद अली खामनाई के जो फादर थे उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की थी। उनकी जो पहली बीवी थी उनसे उनकी 3 बेटियां पैदा हुई थीं, जबकि जो दूसरी बीवी थी जिनका नाम खतीजा था उनसे इनकी 5 औलादें पैदा हुई। इन 5 औलादों में से एक बेटी थी जबकि 4 बेटे थे और इन्हीं 4 बेटों में से एक बेटे का नाम था अली खामनाई, जिनका जन्म 1939 में उसी मशहद शहर के अंदर हुआ कि जहां पर इनके फादर ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा था। सैयद अली खामनाई ने भी अपनी जो बेसिक एजुकेशन थी वो मशहद और नजफ जैसे इलाकों से ही हासिल की थी और बाद में कुम के इलाके में रहने लगे थे और वहीं पर ही ये उन रूहुल्लाह खुमैनी के टच में आए थे कि जिन्होंने 1979 की क्रांति को लीड किया था और जिनको ही मौजूदा ईरान का फाउंडर माना जाता है। अब क्योंकि अली खामनाई उन चंद लोगों में से एक थे कि जिन्होंने 1979 की क्रांति में सबसे अहम किरदार अदा किया था, तो इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी की वफात के बाद सैयद अली खामनाई को ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर चुन लिया गया और तब से लेकर अब तक लगातार मतलब कि पिछले 36-37 साल से यही इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की जो वाइफ हैं उनका नाम रिकॉर्ड में मंसूरा बताया गया है और इन दोनों की 6 औलादें हैं। 2 बेटियां हैं बुशरा और हुदा, जबकि 4 बेटे हैं। मगर इन 4 बेटों में
से जो 3 बेटे हैं वो ऐसे हैं कि दुनिया भर के मीडिया में ना तो कभी उनकी शक्ल नजर आती है और ना ही ज्यादा उनका नाम नजर आता है। मगर जो एक बेटे हैं सैयद मुश्तबा, वो कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में रहते हैं और खास तौर से वेस्टर्न मीडिया उनके बारे में ज्यादा ही लिखता है। उसकी मेन वजह ये है कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से वक्त वक्त पर यह दावा होता रहता है कि सैयद मुश्तबा ही वो हैं कि जो सैयद अली खामनाई के सक्सेसर बन सकते हैं। मतलब मुमकिन है कि ये उनके जानशीन बने और सैयद अली खामनाई के बाद उनको गद्दी पर बैठाया जाए। मगर अगर ईरानियन मीडिया के नजरिए से देखा जाए तो वहाँ पर ना तो कभी इस तरीके का कुछ रिपोर्ट होता है और ना ही इस तरीके के फ्यूचर में कोई चांसेस नजर आते हैं। वेस्टर्न मीडिया की तरफ से इस तरह के लंबे वक्त से जो दावे किए जाते हैं उसकी एक वजह यह भी है कि सैयद मुश्तबा शुरू से ही पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व रहे हैं। वो मशहूर इराक ईरान वॉर में भी हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कई और भी ऐसे मिशंस में हिस्सा ले चुके हैं कि जो ईरान के अंदर ही अलग अलग वक्तों पर अंजाम दिए गए हैं। अब अगर बात की जाए सैयद अली खामनाई की उन बहन के बारे में कि जिनका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था, तो वो हैं ये बदरी खामनाई, कि जिनको सैयद अली खामनाई के सबसे बड़े आलोचकों में गिना जाता है। 2022 में जब मासा अमीनी वाले प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की तरफ खींचा था, तो उस वक्त भी बदरी खामनाई न सिर्फ लगातार अपने भाई और उनकी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रही थी, बल्कि एक ओपन लेटर में उन्होंने तो ये तक उम्मीद कर डाली थी कि उनके भाई की इस हुकूमत को उखाड़ फेंका जाए। बिल्कुल ऐसी ही या इससे भी ज्यादा सख्त कहानी इनके हस्बैंड मतलब के सैयद अली खामनाई के जो बहनोई थे अली तेहरानी, उनकी नजर आती है। ये वो इंसान थे कि जो अमेरिका और उसकी कठपुतली हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में मतलब ईरान की क्रांति में किसी दौर में रूहुल्लाह खुमैनी, सैयद अली खामनाई और इन जैसे तमाम लोगों की तरह आगे आगे खड़े हुए थे। मगर जैसे ही इस्लामिक क्रांति हुई उसके कुछ वक्त के बाद ही अली तेहरानी के इन तमाम असरदार लोगों से मतभेद शुरू हो गए। ऐसा माना जाता है कि अली तेहरानी इन लोगों के मुकाबले में इस बात की वकालत कर रहे थे कि ईरान का जो नया सिस्टम है उसको थोड़ा लिबरल रखा जाए, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अली तेहरानी थे ये दरअसल मुजाहिदीन खल्क से जुड़े हुए थे। जी हाँ, ईरान का वही ग्रुप, वही संगठन कि जिसको आज के दौर में दुनिया के कई देशों की तरफ से एक आतंकवादी ग्रुप के तौर पर ही देखा जाता है। कुल मिलाकर फिर हुआ ये कि जैसे जैसे हालात और ज्यादा बिगड़ते गए, अली तेहरानी का इन लोगों से इख्तलाफ और भी ज्यादा बढ़ता गया, तो अली तेहरानी ईरान छोड़कर इराक की तरफ चले गए। अली तेहरानी एक लंबे वक्त तक खुफिया तौर पर वहीं पर रहते रहे। कई साल गुजर जाने के बाद 1995 में ये वापस आए, तो उसके बाद ईरान के अंदर इनको 20 साल की सजा सुनाई गई। मगर माना जाता है कि इनकी बीवी के जो सैयद अली खामनाई की बहन हैं बदरी खामनाई, उनकी वजह से इनको 10 साल की सजा काटने के बाद आजाद कर दिया गया था। अब अली तेहरानी तो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही उनकी वफात हो चुकी है, मगर जो पीछे बची हुई उनकी बीवी हैं या उनके बच्चे हैं, खास तौर से उनकी जो एक मशहूर बेटी हैं फरीद मुराद या उनके एक बेटे हैं कि जो फ्रांस में रहते हैं, ये सारे के सारे लोग आज भी सैयद अली खामनाई को खूब क्रिटिसाइज करते हैं, जिसको मीडिया की तरफ से और उसमें भी खास तौर से वेस्टर्न मीडिया की तरफ से खूब कवर किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सैयद अली खामनाई की फैमिली की पूरी कहानी। बाकी इस टॉपिक पर आप लोगों की भी अपनी जो राय है वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।